Lecture on states of matter. Our next topic is kinetic molecular theory of gases. What are different assumptions of kinetic molecular theory of gases? If the question is of 2 marks, you have to write 4 points, and if the question is of 3 marks, you have to write 6 points. Now, first point is gases consist of tiny particles. Particles means molecules or atoms. Tiny means small. Gases consist of small particles or tiny particles. Number 2, gas molecules remain far apart from each other. They remain far apart from each other. Therefore, the actual volume of gas particles is negligible as compared to the volume of the container. गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसलिए उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम रहेगा गैस पार्टिकल्स का, दैट कैन बी निगलेक्टेड एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. जो कंटेनर का वॉल्यूम रहेगा उसके कंपैरिजन में गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम बहुत ही कम रहेगा. देयरफॉर इट कैन बी निगलेक्टेड. It means that the actual volume of the gas particles is negligible as compared to the volume of the container. Number 3, the attractive forces between the gas molecules are negligible at ordinary temperatures and pressures. Attractive forces between gas molecules. Gas molecules are far apart from each other. It means that the attractive forces are negligible and it is at ordinary temperature and pressure. Fourth point, gas molecules are in constant random motion. Random motion means zigzag motion and move in all possible directions in straight line. एक सीधी लाइन में हरकत करेंगे. इनका जो मोमेंट रहेगा वे वेव फॉर्म में नहीं रहेगा. इट इज़ अलोंग स्ट्रेट लाइन. दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से भी कोलाइड होंगे एंड विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. Pressure of the gas is due to the collision of gas particles with the container. Gas particles collide with the wall of the container and in doing so they create pressure on the walls of the container. The collisions of the gas molecules are perfectly elastic in nature. Elastic collision है. What does it mean? Which means that the total energy of the gaseous particles remain unchanged after collision. जो gaseous particles की total energy है that will remain unchanged. That collision is known as elastic collision. Next point, the different molecules of a gas move with different velocities at any instant. गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव करेंगे. हर एक की वेलोसिटी अलग अलग रहेगी एंड हेंस हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज. इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जीज भी डिफरेंट हैं. बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? हर एक की अलग अलग एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी. उस वक्त एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर किया जाता है. एंड द एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या लेंगे हम? टेम्परेचर इन केल्विन. सो दीज आर डिफरेंट अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है, ये सब एक एक पॉइंट पे एमसीक्यू का भी क्वेश्चन बनता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है और 2 और 3 मार्क का भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. आइडियल बिहेवियर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडियल गैस? द गैस विच ओबेज all gas laws at all conditions of temperature and pressure. That gas is known as ideal gas. Deviation from ideal behavior. एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू रहेगी
जैसा बिहेवियर आइडियल गैस का रहेगा उससे अलग जो बिहेवियर रहेगा उससे इनहेराफ करेगी गैस आइडियल बिहेवियर से। डेविएशन का टू डेविएट, इसका मतलब हम लेंगे इनहेराफ, जो फिक्स वैल्यू है उसकी वैल्यू से अलग वैल्यू हमको मिलेगी। इसको कहा जाता है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जो आइडियल बिहेवियर गैसेस का रहेगा उससे अलग बिहेवियर रहेगा, दैट इज़ नोन एज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। Now ideal gas equation is PV is equal to nRT, n is equal to PV upon RT। ठीक है, we use 1 mole of any gas, then the ratio, यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है ये 1। अब ये जो रेशो रहेगा PV upon RT is predicted to have numerical value of 1 at all pressures। If a gas does not obey the ideal gas law, the ratio will be either greater than 1 or less than 1 and such a gas is called real gas। अगर यहाँ पे PV upon RT is equal to 1 हमको मिल रहा है, इसका मतलब द गैस का बिहेवियर आइडियल है। और अगर ग्रेटर देन और लेस देन 1 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब गैस का बिहेवियर आइडियल नहीं है। एट दैट टाइम दैट गैस इज नोन एज रियल गैस एंड नॉट आइडियल गैस। ओके, नाउ आइडियल गैस को हम किसको कहेंगे हम? सो दीज आर सम पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज आइडियल गैस ओबेज ऑल द गैस लॉज ओवर द इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, देयर आर नो इंटरएक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके बीच में किसी भी किस्म का इंटरएक्टिव फोर्स नहीं रहेगा। उस टाइप की गैस को कहा जाएगा आइडियल गैस। नेक्स्ट पॉइंट है इसके लिए, द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज़ निग्लिजिबली स्मॉल। इतना स्मॉल रहेगा जिसके उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसके कंपैरिजन में जो गैस का वॉल्यूम रहेगा इट कैन बी निगलेक्टेड एंड दीज आर द पॉइंट पार्टिकल्स। जो गैस के पार्टिकल्स रहेंगे उनको हम कंसिडर कर लेंगे पॉइंट पार्टिकल्स। व्हाई? बिकॉज द वॉल्यूम इज़ निग्लिजिबली स्मॉल, द वॉल्यूम कैन बी निगलेक्टेड, इसलिए हम उनको पॉइंट पार्टिकल्स के तौर पे कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ रियल गैस किसको कहा जाएगा? रियल गैस, द रियल गैस डज नॉट ओबे बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से अलग जो बिहेवियर रहेगा उसको कहा जाएगा डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड। कब ये ऑब्जर्व होगा? it is observed at high pressure and low temperature and it is due to 2 reasons. What are those reasons? First reason is the intermolecular attractive forces are not negligible in real gases। जबकि आइडियल गैस में क्या है, इसका अपोजिट सेंटेंस हम देखेंगे। क्या? द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर निग्लिजिबल इन आइडियल गैसेस। रियल गैस में क्या हो रहा है? आर नॉट निग्लिजिबल इन रियल गैसेस। दीज डू नॉट अलाउ द मॉलिक्यूल्स टू कोलाइड द कंटेनर वॉल विथ फुल इम्पैक्ट। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से कोलाइड होंगे तो अपना फुल इम्पैक्ट के साथ कोलाइड नहीं होंगे। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन प्रेशर। जो क्या रहेगा, इसका नतीजा क्या रहेगा कि प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, व्हाट इज प्रेशर? द गैस पार्टिकल्स कोलाइड विद द कंटेनर वॉल। तो ये जो जब कोलिजन होगा तो उस वक्त दे क्रिएट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड एज द मॉलिक्यूल्स will not collide with the container wall with full impact, it means that the decrease in pressure will be observed.
Next point, at what happens at high pressure, the molecules are very close to each other. प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे. At high pressure, the molecules are very close to each other. The short range repulsive forces start operating. शॉर्ट रेंज मतलब जिनका रेंज कम रहेगा. शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्स, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आने लगेंगे तो रिपल्सिव फोर्स उनके बीच में ऑपरेट होने लगेगा. एंड द मॉलिक्यूल्स बिहेव एज स्मॉल बट हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स. आइडियल गैस में पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा है? लाइक पॉइंट पार्टिकल्स. लेकिन रियल गैस में कैसा आ गया? एज हार्ड, लाइक हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स. द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नॉट नेग्लिजिबल. आइडियल गैस में क्या देखा हमने? द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल, इसलिए उनको पॉइंट पार्टिकल के तौर पे कंसिडर किया गया. लेकिन यहाँ पे क्या है? दे बिहेव एज स्मॉल हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नॉट नेग्लिजिबल. उस वक्त हम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. एंड at very low temperature, the molecular motion becomes slow. जब टेम्परेचर कम रहेगा तो उस वक्त मॉलिक्यूल्स का जो हरकत रहेगी वो स्लो हो जाएगी. एंड द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स. जब उनका मोशन स्लो हो जाएगा तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे. Hence, here again the behavior of real gas deviates from the ideal gas behavior. जो रियल गैस रहेंगी उनका जो बिहेवियर रहेगा वो आइडियल गैस बिहेवियर से डिफरेंट हो जाएगा. इसको हम कैसे कहेंगे? द बिहेवियर ऑफ द रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर. ठीक है. सो दीज आर सम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस इन बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस. इन दोनों में ना एक क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश का. डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस. बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 152 पर. इसको आपको स्टडी करना रहेगा, याद करना इसको. 6 पॉइंट्स आर गिवन. जनरली 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बनता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर. आइडियल गैस का कंसेप्ट जहाँ आएगा उस वक्त हमको ये एक फैक्टर मिलेगा, दैट इज़ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर. ठीक है. नाउ रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर व्हेन द प्रेशर अप्रोचेस जीरो. डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z, which is Z is equal to PV upon nRT. For ideal gas, Z is equal to 1 at all the values of temperature and pressure. ये देखिए, लुक एट दिस ग्राफ. ये है Z इज़ इक्वल टू 1. दिस स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन ये जो है ये आइडियल गैस के लिए है. और यहाँ पे ये सब जो कर्व्स मिल रहे हैं ये हमको मिलेगा, ये डेविएशन के तौर पे मिलेगा. ठीक है. सिर्फ ये कब रहेगा आइडियल गैस के लिए? व्हेन Z इज़ इक्वल टू 1 एट ऑल वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. उस वक्त गैस का बिहेवियर कैसा हो जाएगा? आइडियल बिहेवियर. नाउ नेक्स्ट, पॉजिटिव डेविएशन. अगर हम देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन इन Z, इट मीन्स दैट Z इज़ ग्रेटर देन 1. इट इज़ Z इज़ ग्रेटर देन 1 means that the volume of the molecule cannot be neglected and the gas is difficult to compress. At low pressure, the gases have Z is equal to 1 or Z is less than 1. Under this condition, the molecular volume is negligible and the gases are compressible. Hence, the gases show ideal behavior. ये गैस का बिहेवियर आइडियल हो जाएगा. कब हो जाएगा? लोअर प्रेशर पर, जब गैसेस हैव Z इज़ इक्वल टू 1 और Z इज़ लेस देन 1. इस कंडीशन में गैसेस का बिहेवियर आइडियल हो जाएगा. ठीक है. सो दीज आर सम पॉइंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स. नाउ इट इज़ ऑल अबाउट द गैसियस स्टेट. यहाँ पे गैसियस स्टेट को के बारे में यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है. नाउ
अब इस चैप्टर में हमको गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में स्टडी करना है। नाउ हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हमको वेपर प्रेशर देखना है, सरफेस टेंशन देखना है और विस्कोसिटी की स्टडी करना है हमको। नाउ लिक्विड स्टेट में जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स आर लूजली हेल्ड, ये लिक्विड स्टेट रहेगा। सॉलिड स्टेट में क्या रहेगा? द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। गैसियस स्टेट में रहेगा द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी लूजली हेल्ड। इन दोनों के बीच की जो कंडीशन रहेगी, इट इज़ विथ लिक्विड स्टेट, द पार्टिकल्स आर लूजली हेल्ड। नाउ इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज़ वेपर प्रेशर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर? Vapor pressure, the pressure exerted by the vapor in equilibrium with the liquid is known as saturated vapor pressure or simply vapor pressure, ठीक है। and the vapor pressure of water is also called as aqueous tension. suppose it is a container, ये एक कंटेनर है, ठीक है। इट इज़ इन क्लोज्ड कंडीशन, इसमें पहले ही एक और कंटेनर रख के उसके अंदर लिक्विड रख दिया गया है, बीकर कंटेनिंग लिक्विड। ये है क्लोज्ड वेसल। इट इज़ एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ वेपर प्रेशर एंड दिस आउटर वेसल इज़ कनेक्टेड विद मर्क्यूरी मैनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, ये जो एरो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, यहाँ पे एक प्रोसेस होने लगेगा एवेपोरेशन का। एवेपोरेशन इसका मतलब है लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। अब यहाँ पे ये वेसल क्लोज्ड कंडीशन में है, इन वेपर्स को एस्केप होने के लिए जगह नहीं है, तो ये क्या होंगे, वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर इस लिक्विड में मिक्स होने लगेंगे, शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये है एवेपोरेशन का प्रोसेस, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। कंडेंसेशन मीन्स वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। देयरफॉर दीज टू प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन, ये दोनों प्रोसेस होने लगेंगे, एक एवेपोरेशन का और दूसरा कंडेंसेशन का। एक स्टेट ऐसा आएगा कि रेट ऑफ एवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। दिस स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट एंड एट दिस स्टेट the pressure exerted by the vapor is known as saturated vapor pressure or simply you can say vapor pressure. And if the liquid here is water, at that time that vapor pressure of water is known as aqueous tension. Aqueous tension, what does it mean? The vapor pressure of water is known as aqueous tension. What is vapor pressure? The pressure exerted by the vapors in equilibrium. Equilibrium का मतलब समझ में आ गया आपको। Rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. It is equilibrium state. So at that time the pressure exerted by vapors is known as vapor pressure. And if water is taken as liquid, at that time the vapor pressure of water is called as aqueous tension, ठीक है। यहाँ पे ये सब डिफरेंस जो आएगा, ये यहाँ पे मैनोमीटर के ये कॉलम में, तो ये जो मेज़र किया जाएगा इसको रीड कर लिया जाएगा यहाँ से, एंड इट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। और अगर ये लिक्विड यहाँ पे वाटर रहेगा तो इसको हम कहेंगे एक्वियस टेंशन। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज surface tension. Surface tension, it is the surface phenomenon. Vapor pressure, it is the surface phenomenon. Vapor pressure अगर हम देखेंगे तो जो molecules evaporate हो रहे हैं, that molecules are from surface. Therefore vapor pressure it is surface phenomenon and surface tension it is also the surface phenomenon. Now अब जब लिक्विड हम किसी कंटेनर में लेते हैं तो उसका एक सरफेस
रहता है, पर्टिकुलर सरफेस मेंटेन हुआ रहता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इधर उधर नहीं जाते, ऐसा नहीं कि कुछ एकदम ऊपर रहेंगे, कुछ कंटेनर की वॉल से लगे रहेंगे, ये सब हम देखते नहीं हैं। एक पर्टिकुलर सरफेस मेंटेन हुआ रहता है ये लिक्विड का। किसी भी कंटेनर में हम अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का लिक्विड लेंगे तो उसका एक सरफेस मेंटेन हुआ रहता है, एंड दिस मेंटेनेंस इट इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन। नाउ इसी सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड है इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन and the particles in the bulk of the liquid are uniformly attracted in all directions. This is the bulk particle. ये लिक्विड के बॉडी में पार्टिकल है अंदर, उसको कहा जाएगा बल्क पार्टिकल, एंड दिस पार्टिकल इज एट द सरफेस, इसको कहा जाएगा सरफेस पार्टिकल, एंड these surface particles are responsible for the surface tension. And the molecules which are present at the surface, these molecules experience imbalance force, and the molecules which are present in the bulk, these molecules will experience balance force. What does it mean? देखिए ये जो पार्टिकल है इसका अट्रैक्शन इस साइड से हो रहा है, इस साइड से हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, जब फोर्स बैलेंस हो गया। इस पार्टिकल का अट्रैक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन्होंने अपने आप को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे बैलेंस फोर्स हो गया, यहाँ पे भी बैलेंस्ड फोर्स है, यहाँ पे भी बैलेंस्ड फोर्स है। इसका मतलब क्या है? द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द बल्क आर यूनिफॉर्मली अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस, इसको कहा जाएगा बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द बल्क इज ज़ीरो। इसका नतीजा क्या रहेगा? बैलेंस फोर्स का जो नेट फोर्स रहेगा दैट विल इक्वल टू ज़ीरो, एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस आर इम्बैलेंस्ड। ये जो मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर रहेंगे वो इम्बैलेंस्ड कंडीशन में रहेंगे। इधर लेफ्ट साइड राइट साइड में तो फोर्स बैलेंस हो गया, व्हाट अबाउट दीज फोर्सेस? ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इधर तो अट्रैक्शन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ऊपर के साइड में मॉलिक्यूल्स नहीं हैं जो अट्रैक्ट इनको इन फोर्सेस को बैलेंस करें। इसीलिए इसी वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड कंडीशन में लिक्विड का सरफेस रहता है। किसी भी लिक्विड का जब आप देखेंगे, व्हाट डज इट मीन? द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस एक्सपीरियंसेस इम्बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Therefore, liquids have a tendency to minimize their surface area. And what is the definition of surface tension? The force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of liquid is called surface tension. And the surface tension is a temperature dependent property. ये इस टाइप का क्वेश्चन MCQ का बनता है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर रहेगा टेम्परेचर। ठीक है, कैसे बनेगा? सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, लाइक दिस, ये सब ऑप्शंस हम रहेंगे तो आपका आंसर रहेगा टेम्परेचर। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, उस वक्त आपका आंसर रहेगा सरफेस टेंशन। इसी से एक सेंटेंस में हमने यहीं के यहीं 2 क्वेश्चन बना लिया। ये सब जो MCQ के क्वेश्चंस रहते हैं ये आप खुद फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट इज़ विस्कोसिटी। लिक्विड का जो गाढ़ापन रहता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं, एबिलिटी टू फ्लो। हाँ, अगर कोई लिक्विड गाढ़ा रहता है तो उस वक्त हम कहते हैं इट इज़ मोर विस्कस, इट मीन्स दैट इट्स विस्कोसिटी इज़ हाई। जो लिक्विड पतला रहेगा तो जो विस्कोसिटी रहेगी उसको हम कहेंगे विस्कोसिटी इज़ लेस, इट इज़ लेस विस्कस। ठीक है, जो गाढ़ापन रहता है, ऑयल डालेंगे हम सरफेस के ऊपर और वाटर डालेंगे तो तेज़ी में फ्लो होने वाला जो लिक्विड रहेगा दैट विल बी वाटर। इट मीन्स दैट द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज़ हाई एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ वाटर। ठीक है, सो विस्कोसिटी क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रगड़ की वजह से जो फोर्स रहता है ना, दैट इज़ नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। देखिए ये जो फिगर है, दिस फिगर,
दिस फिगर इज फ्रॉम बुक। इस फ्लो को कहा जाता है लेमिनार फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ ट्यूब और पाइप। सपोज एक पाइप लेते हैं हम। पाइप कैसा रहता है? गोल रहता है, पता है आपको। अब उसमें से एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो जो वाटर लिक्विड की लेयर इस पाइप के वॉल से लग के चलेगी, पाइप के वॉल से लग के चलेगी, उसको नियर अबाउट स्टेशनरी लेयर कंसीडर किया जाएगा। दैट विल बी स्लोएस्ट लेयर, उसकी स्पीड सबसे कम रहेगी। और जैसे जैसे ये लेयर अंदर की तरफ आते जाएंगी, अंदर की तरफ, तो जो उनकी स्पीड रहेगी वो स्पीड बढ़ते जाएगी। लुक एट दिस फिगर। सपोज इट इज़ द वॉल ऑफ द पाइप, ये वॉल ऑफ द पाइप, इसकी वेलोसिटी है v फॉर वेलोसिटी, एंड इट इज़ द स्लोएस्ट वेलोसिटी। ये सबसे स्लो लेयर रहेगी। जो लिक्विड रहेगा उसको कंसीडर हम कैसे करेंगे कि लिक्विड इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेयर्स। तो जो लेयर पाइप की वॉल से लग के चलेगी उसकी स्पीड सबसे कम, स्लोएस्ट। जैसे जैसे अंदर की तरफ ये लेयर आते जाएंगी उनकी स्पीड बढ़ते जाएगी। v प्लस डी वी का मतलब है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ये जो v तो ऑलरेडी है, उसमें एक छोटी वैल्यू और ऐड हो गई, और अंदर जाएंगे तो उसमें और अगेन एक छोटी वैल्यू ऐड हो जाएगी। अंदर जाते जाएंगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम रहेगा, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ये ऐड होते जाएगी इस ओरिजिनल वेलोसिटी में। इसका मतलब क्या रहेगा? जो अंदर की तरफ लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। अब सपोज देयर आर n नंबर ऑफ लेयर्स, तो यहाँ पे हम ले लेंगे n dv। ये पहली लेयर का है, ये दूसरी लेयर का, तीसरी, अप टू n dv, v प्लस n dv। इस लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी जो बिल्कुल मिडल में रहेगी। ठीक है, तो जो लेयर वॉल के लग से चलेगी, वॉल की पाइप के वॉल से लग कर चलेगी, उसकी स्पीड सबसे कम। जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगी लेयर्स वॉल से, वैसे वैसे उनकी स्पीड बढ़ते जाएगी। ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से जो फोर्स रहेगा इन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, ये सब एक दूसरे से लग के लेयर्स चलेंगी, तो इनकी वजह से जो फोर्स रहेगा दैट इज़ नोन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे ये जो देखिए, ये सेंटर की लेयर, इसकी वेलोसिटी v, यहाँ पे जब इससे दूर जाएगा इट इज़ v माइनस डी वी, ये माइनस है। ये वाली फिगर क्या है? यहाँ पे हमने क्या कंसीडर कर लिया? जो वॉल है उसकी, उससे लग के जो लेयर है उसकी वेलोसिटी v, यहाँ पे जो बीच की लेयर है उसकी वेलोसिटी v। जैसे जैसे इस मिडल पार्ट से हम दूर होते जाएंगे, ये कंटेनर वॉल की तरफ हम आते जाएंगे, तो ये जो डी वी है इसमें v में से हम माइनस करते जाएंगे, माइनस 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 करते जाएंगे, तो ये जो वॉल से लग के लेयर चल रही है उसकी वेलोसिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का थोड़ा अपोजिट फिगर्स हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ये v हमने किनारे लिया है और ये जो v है हमने मिडल में ले लिया, तो यहाँ पे हमने लिखा v माइनस डी वी। अब इधर हम जब मिडल की साइड में आते जाएंगे तो इसलिए हमने इसको लिख दिया v प्लस डी वी। इस फ्लो को कहा जाता है लेमिनार फ्लो। इस फ्लो को कहा जाता है लेमिनार फ्लो ऑफ द लिक्विड। एंड विस्कोसिटी, इट इज़ द टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ऑयल लेते हैं अगर हम एक पैन में, उसको सपोज हीट देते हैं, हाँ, तो जितनी दूर ऑयल रहता है, ठीक है, ऑयल रहेगा, अगर हम उसको हीट देंगे तो वो और फैला हुआ दिखने लगेगा, मतलब इट बिकम्स लेस विस्कस। इट मीन्स दैट विस्कोसिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसका एग्जाम्पल है विस्कोसिटी का, एक अपनी डेली प्रैक्टिस में है, लेकिन इसके ऊपर हम कभी अपना इंटेंशन नहीं जाता है। ये क्या है कि एक सिंक है, अगर हम उसमें ढेर सारा वाटर एक साथ डाल देंगे तो जो बीच में ऐसा गोल गोल बन जाता है, जो सिंक का जो ड्रेनेज का जो पाइप बीच में रहता है, आउटलेट रहेगा उसकी ओपनिंग के पास, जो लिक्विड रहेगा ना उसमें वहाँ गोल गोल ऐसा बन जाता है। वो किसकी वजह से बनेगा? कि जो लेयर बीच वाली है वो जल्दी से चली गई,
उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा। अब जो लेयर्स सिंक की वॉल से लग के चल रही है उसकी स्पीड सबसे कम है। ठीक है, तो वो बीच में ऐसा गोल गोल बन जाता है वो। ये अपनी डेली प्रैक्टिस में है। ठीक है, अब उसको आप देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। दैट फ्लो इज़ नोन एज लेमिनार फ्लो। दैट फ्लो इज़ नोन एज लेमिनार फ्लो। ठीक है, लेमिनार फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ ट्यूब और अ पाइप। ठीक है, सो अब ये जो विस्कोसिटी रहता है यहाँ पे लुब्रिकेटिंग ऑयल्स रहते हैं, दीज आर विस्कस लिक्विड्स। अब जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हम अप्लाई करते हैं मशीन्स पे, मशीन में जो सिलाई मशीन के एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी उसमें से ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, वो बहुत ज़्यादा उसमें फोर्स हम लगने लगता है उसको ऑपरेट करने में। तो उस वक्त क्या करते हैं, हम उसमें ऑयल डालते हैं। उनके मशीन के जो पार्ट्स रहते हैं उसमें हम ऑयल डालते हैं, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स रहते हैं। तो वो सब जो टाइटनेस आता है मशीन के पार्ट्स में, इट इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो उस लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो वो वापस से उनका जो मूवमेंट रहता है वो इजीली होने लगता है। सो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इट इज़ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। वहाँ भी जो फिनोमिनन काम करता है दैट इज़ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट द विस्कोसिटी। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड, and it is known as viscosity, and it is the laminar flow of liquid, laminar flow of liquid. ठीक है, ओके, थैंक यू।